Very good morning to all of you students. Myself, Professor Ravindra Gupta from Sonupant Dandekar Junior College, Palghar from Biology Department. Today, we will start with the 11th Science Biology 6 number chapter, that is biomolecules. Now, what's the meaning of a biomolecules? Bio means a living, and the living cell and the living thing contain a different type of molecules, that is macromolecules, micromolecule inside their cell for a different type of chemical reaction, that is a metabolic reaction, that is nothing but the biomolecules. So in this full chapter we will study about the lipids and their types, nucleic acid, that is DNA, deoxyribonucleic acid, and RNA, that is ribosomal nucleic acid, and their types. And in this chapter, we will also study about the carbohydrates, that is a simple type, a sugar, then polysaccharide like a starch. Okay, so the different type of carbohydrates and the protein. Okay, so that is amino acid. So in this chapter we will study about the lipid, their types, nucleic acid, carbohydrates and protein. Now we will start with our lecture, that is 6 number chapter, biomolecules. As a starting with this lecture, you will see that on that first page you will get some points, that is our planet. Okay, our planet is a wide diversity of living organisms that are classified as a unicellular, consisting of a single cell, including bacteria and yeast, as well as multicellular, having a many cell, example plants and animal. And a common example is human being. Means यहाँ पर अगर हम लोग पूरे डाइवर्सिटी का वर्ल्ड के अंदर फुल डाइवर्सिटी का अगर एग्जांपल ले रहे हैं, सो ये डाइवर्सिटी के अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सो यू विल गेट दैट ऑल दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म विल बी classified on the basis of their cell as a unicellular and a multicellular. Unicellular means the body consists of only a single cell, and multicellular, that body consists of that animal and that organism consists of more than two cells. So that is a multicellular. कॉमन एग्जाम्पल हमारे बाजू आजू बाजू में जितने भी प्लांट्स है या तो हम लोग एनिमल्स है, सो वी ऑल आर मल्टी सेलुलर. If I'm taking an example of a unicellular animal, so these are the bacterium, single cell, then yeast, single cell, amoeba, single cell. Okay, so these are the different type of unicellular and multicellular animals and the organism are around in the world are present. Now, you have also learned that living organism have cell as a basic structural and functional unit. The cell have protoplasm containing numerous chemical and molecule, and this molecule and a chemical present inside a cell, that is called it as a biomolecule. Now what's the meaning of biomolecules? Okay, what is given here? यहाँ पे क्या दिया है? So as we all you know that हमने पहले से ही पढ़ा है, cell as a basic and structural and a functional unit of a life. Every organism, they may be a unicellular, they may be multicellular. हम लोग कोई भी ऑर्गेनिज्म ले लें, वो प्रोटिस्टा हो, वो किंगडम मोनेरा में आ जाए या कहीं पर भी आ जाए, so all organism, okay, all the organism are made up of cell, and cell is a structural and a functional unit of life because all the processes are going inside our cell. लाइक एनर्जी प्रोडक्शन है, सो कहां पर होगा? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा. सेलुलर रेस्पिरेशन होगा. सो ऑल दीज एक्टिविटी आर गोइंग इनसाइड आवर सेल. सो सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड अ functional unit in our life. Now we know that cell consists of a protoplasm, that is a cytoplasm. Okay, सेल के अंदर क्या होता है? 5th नंबर चैप्टर जो आप लोग देखने वाले हैं, वहां पर सेल के अंदर क्या होता है? सो सेल कंसिस्ट ऑफ अ साइटोप्लाज्म. Okay, and that cytoplasm consists of so many organelles.
and inside that organelles and a cytoplasm and a protoplasm, whatever chemical and molecules are present, so that is called it as a biomolecules. Okay, so this is called it as a biomolecules. So we will study that cell composition. ये पूरे चैप्टर में हमको क्या स्टडी करना है? So सेल के अंदर ये जो अलग अलग टाइप के बायोमोलिक्यूल्स है, उनके क्या टाइप है, and what is the use of that biomolecules in our daily life and in our cell. हमारे सेल के अंदर उनका यूज क्या है, तो वो सब पार्ट हम लोग ये आज के लेक्चर में देखने वाले। Now the next part is biochemistry. Biochemistry is a biological chemistry that provide us an idea of the chemistry of living organism and molecular basis of changes taking place in a plant and animals and microbial cell. Now what's the meaning of biochemistry? So देखो यहाँ पर आज बायो के अंदर स्टूडेंट्स समझना कि हर एक वर्ड का मीनिंग आपको उस वर्ड के अंदर ही मिल जाएगा. That is biochemistry. Bio means biology, that is living thing. Chemistry, so what is the meaning of biochemistry? Study of chemical composition inside our living organism and inside a cell. That part and that branch of biology is called it as a biochemistry. Now what's dealing with that biochemistry? So biochemistry is a biological chemistry that provide an idea of the chemistry of a living organism. जहां पर हम लोग किसके बारे में स्टडी करेंगे? लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो कौन से केमिकल्स है सेल के अंदर, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे. एंड द मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ अ चेंजेस means whatever chemical are present, that is called it as a biomolecules, and what is the changing or changes are taking place inside a chemical reaction. मतलब सेल के अंदर जो बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट है उनके अंदर रिएक्शन होने के बाद कौन से टाइप के चेंज होंगे, so that we will study in that topic, that is plant cell, animal cell and microbial cell. So हर एक सेल और सेल कहां पर है, यू ऑल यू नो दैट 5 किंगडम सिस्टम में जितने भी ऑर्गेनिज्म आ गए उनके अंदर ये पार्ट का स्टडी यानी बायोकेमिस्ट्री हो जाए. नाउ दैट बायोकेमिस्ट्री एंड बायोमोलिक्यूल्स, दैट बायोकेमिस्ट्री डेवलप्स द फाउंडेशन of understanding all biological processes and communication within and between the cell, as well as chemical basis of inheritance and diseases in animal and plants. So what is the use of that? Okay, what is the use of biochemistry? So because of a biochemistry we can understand all biological process, means living being के अंदर जो भी chemical reaction हो रहा है उसके बारे में स्टडी हम लोग करेंगे. प्लस What is a communication within the cell? सेल के अंदर इसका कम्युनिकेशन क्या है, एक बायोमोलिक्यूल्स का दूसरे बायोमोलिक्यूल्स के अंदर रिएक्शन हो रहा है, सो क्या यूज हो रहा है, so that we will study, so we will get the idea about that. So यहाँ पर इस स्टडी में बायोकेमिस्ट्री में हमको उसका आइडिया मिलेगा, as well as chemical basis of inheritance, which all you know that कि अगर एक चाइल्ड कहाँ पर किसी पर्सन को अगर बर्थ हो रहा है किसी के घर में, चाइल्ड का, बेबी का, सो उस बेबी को देखने आने वाले बोलते हैं कि इसका जो भी कैरेक्टर से इसके मॉम से या डैड से मैच हो. सो व्हाई दिस इज हैपन? बिकॉज ऑफ द जेनेटिक्स, जीन ट्रांसमिट होता है. सो जीन यानी क्या है? डीएनए एंड आरएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. नाउ व्हाट्स द मीनिंग ऑफ डीएनए? न्यूक्लिक एसिड. न्यूक्लिक एसिड क्या है? बायोमोलिक्यूल. So ultimately this transmission, inheritance, that is a transmission of character from one to next generation, plus अगर किसी को एक डिसीज हो रहा तो वो उसके चाइल्ड में ट्रांसमिट हो रहा है, सो उसका भी आंसर हमको कब मिलेगा? सो वी विल गेट दैट आंसर फ्रॉम अ बायोकेमिस्ट्री, दैट इज स्टडी ऑफ बायोलॉजी, that is the living being chemistry. Okay, that proceeding with the next part, that is a next slide. Chemical analysis of all living organism indicates the presence of most of the common element like carbon, hydrogen, nitrogen, oxygen, sulfur, calcium, phosphorus, magnesium and other with their respective content as per unit mass of a living tissue. अगर हमने कोई भी ऑर्गेनिज्म, अगर हमने खुद के भी अगर सेल का अगर कोई पार्ट हमने टिश्यू का बॉडी का कट किया और उसके अंदर अगर हमने कंटेंट को, केमिकल कंटेंट को चेक किया यूनिट मास में, और एक मतलब 100 ग्राम लिया और उसके अंदर मैंने चेक किया कि कार्बन कितना है, सो वी विल गेट दैट ऑल दिस कंटेंट, दैट इज कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, ये सब कंटेंट हमको सेल के अंदर यानी कि लिविंग सेल में मिल जाए.
Now after that, chemically all living organisms have basic three type of macromolecule, which are polymer of simple subunit, call it as a monomers. Okay, so chemically each and every living organism consists of three type of macromolecules. वहां पर हमको तीन अलग अलग टाइप के मैक्रो मीन्स बिगर साइज, सो तीन अलग अलग टाइप के मैक्रोमोलिक्यूल्स मिल जाएंगे. एंड हाउ these macromolecules are formed inside our body, so this is subunit of a monomers, means simple unit से form होगा. Like if I'm taking an example, so जैसे अगर मैंने शुगर का एग्जांपल ले लिया, कार्बोहाइड्रेट, सो कार्बोहाइड्रेट में मोनोसैकेराइड यानी सिंपल वाला शुगर हो गया ग्लूकोज, देन डाइसैकेराइड यानी थोड़ा सा बिगर हो गया, टू यूनिट आर जॉइन टुगेदर लाइक अ लैक्टोज, स्टार्च यानी दो से ज्यादा मोनोमर यूनिट एक जगह आएंगे, सो दैट इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ मैक्रोमोलेक्यूल, इट इज विद द हेल्प ऑफ मोनोमर यूनिट. नाउ द पॉलीसैकेराइड, that is carbohydrate, then polypeptide, that is protein, and polynucleotide, that is nucleic acid, that is deoxyribonucleic acid and ribosomal nucleic acid, are a polymer of monosaccharide, amino acid and nucleotide respectively, which is given in a figure, that is 6.1. वो टेबल हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं. ओके, सो यहाँ पर क्या बोला है, सो जो सिंपल यूनिट है when they are aggregated, so simple unit means that is call it as a sugar के अंदर monosaccharide है, then protein के अंदर simple unit यानी amino acid है, then nucleic acid का formation nucleotide से होगा, so that nucleotide are joined together to forming a nucleic acid, amino acid are joined together to forming a protein, so ये bigger unit यानी polysaccharide को polypeptide and polynucleotide का structure form करेगा. Lipids are water insoluble. You know that lipids are water insoluble and small molecular weight compound as compared to macromolecules. Okay, macromolecules यानी साइज में जो बिगर है, जिनके साइज बिगर है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला थोड़ा सा बिगर आएगा. लिपिड्स का साइज थोड़ा सा स्मॉलर है और उनका मॉलिक्यूलर वेट भी कम है एज कंपेयर टू मैक्रोमोलिक्यूल लाइक अ पॉलीसैकेराइड, पॉलीपेप्टाइड एंड polynucleotide. Now we will see that chart. Okay, in our body, whatever chemical composition are present inside our cell, हमारे सेल के अंदर जितने भी chemical composition present है, so that will be categorized into a biomolecule. It is of two type के हैं, that is organic and inorganic. Now when you see the organic, so organic is again divided into a two type, that is on the basis of their size and molecular weight, that is macromolecule and micromolecule. Now macromolecule are bigger in size as compared to micromolecule. Micro means smaller, so उनका size smaller रहेगा. इसके अंदर example lipids चले जाएंगे. Now you can see that macromolecules, that is bigger inside, consist of three types, that is polysaccharide, polypeptide and polynucleotide. पॉलीसैकेराइड यानी शुगर. ओके, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया है सिंपल शुगर. इफ आई एम टेकिंग एग्जांपल, दैट इज ग्लूकोज, ग्लूकॉन डी वगैरह हम लोग जो पीते हैं, तो वो सिंपल टाइप का शुगर होगा. व्हेनेवर वी आर ईटिंग अ पोटैटो, सो पोटैटो में स्टार्च होता है, वो क्या है, पॉलीसैकेराइड. मींस दो से ज्यादा यूनिट एक जगह आएगा तो फिर क्या होगा, पॉलीसैकेराइड का फॉर्मेशन होगा. Then amino acid, there are so many type of amino acid are present. When these amino acid are joined together, they are forming a polypeptide और इससे प्रोटीन फंक्शन होगा. Then nucleotide, there are ACTG, adenine, cytosine, guanine. So ऐसे अलग अलग टाइप के वहां न्यूक्लियोटाइड है, और ये न्यूक्लियोटाइड जब ज्वाइन टुगेदर होगा तो ये क्या फॉर्म करेगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, और उससे आगे जाके डीएनए एंड आरएनए, राइबोसोमल न्यूक्लिक एसिड, और that is DNA, that is deoxyribonucleic acid का formation होगा जो कि साइज में बिगर है. Now the micromolecule, it is of two type, lipids and the secondary molecule. Now what's the meaning of lipids? Lipids are a combination of fatty acid and glycerol. Okay, fatty acid और glycerol जब join होगा तो इससे form होगा that is a formation of lipid form. Now what's the meaning of fatty acid? Now the fatty acid, it is of two type, saturated fatty acid and unsaturated fatty acid, that is on the basis of hydrogen ion.
वहां पर हाइड्रोजन आयन का कंटेंट कितना ज्यादा है तो वो सैचुरेटेड है। इफ अगर हाइड्रोजन आयन कंटेंट कम है तो वहां पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, सो दैट इज कॉल्ड इट एज अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इसको हम लोग डिटेल में आगे देखने वाले हैं पूरे चैप्टर्स में। सो व्हाट वी आर स्टडीइंग इन अ फुल चैप्टर, ये पूरा इस टेबल में दिया। नाउ द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स like alkaloids, that phenolics, terpenoids, essential oil, toxins and lectins. Other than that, there is a organic को छोड़ दिया तो second type हमारे सेल के अंदर है, that is a inorganic substance, inorganic biomolecules. These have consist of three type. प्राइम एलिमेंट जिसके अंदर हमारे बॉडी के अंदर सेल में ये चारों कंपोजिशन हमको कंपल्सरी मिलेगा तीनों, दैट इज कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ये एयर के अंदर भी प्रेजेंट है और वाटर में भी प्रेजेंट है। बिकॉज़ लिविंग बीइंग आर प्रेजेंट ऑन एटमॉस्फेरिक, यानी कि एटमॉस्फेयर के अंदर भी है, टेरेस्ट्रियल फॉर्म में भी है और वाटर के फॉर्म में भी है। सो ये दोनों भी कंटेंट में प्रेजेंट। मैक्रो एलिमेंट लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ऑल दीज आर द मैक्रो एलिमेंट which are require a high amount, जो कि हमको हाई अमाउंट में लगेगा बॉडी के अंदर। Some of the element which are present in our body, but it is in a very small quantity, so they are called it as a trace element. So these are the boron, chlorine, zinc, copper, iron, sodium, then molybdenum, nickel, silicon and cobalt. So these are the example of that biomolecules. Now we will proceed with that next point. So now we are starting with the 6.2 biomolecules in the living cell, that is biomolecules in the cell. In that first one topic we are starting with that carbohydrate. Okay, हम लोग कार्बोहाइड्रेट यानी शुगर से स्टार्ट करेंगे। Now what's the meaning of carbohydrate? The word carbohydrate means hydrate of a carbon and which is also called it as a saccharide. इसीलिए देखो हमको यहाँ पर इसके अलग अलग टाइप में मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड. So why they are called it as a mono, single unit, double unit disaccharide, poly दो से ज्यादा. So carbohydrate is a simple meaning hydrate of carbon and they are also called it as a saccharides. Okay, now the next part, they are biomolecule made up of just three elements, that is carbon, hydrogen and oxygen with a general formula that is CxH2OY. You can see here, okay, आपको ये राइट साइड में देखो पिक्चर है ग्लूकोज का. ये ग्लूकोज के डायग्राम है. स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के अंदर देखो आपको कार्बन मिल जाएगा, हाइड्रोजन मिल जाएगा, ओके, ऑक्सीजन मिल जाएगा. So the carbohydrate, all the carbohydrate are made up of these three elements. हर एक कार्बोहाइड्रेट के अंदर आपको कंपलसरी ये तीन एलिमेंट कंपलसरी मिलेंगे. दैट इज कार्बन होना चाहिए वहां पर, हाइड्रोजन होना चाहिए वहां पर और ऑक्सीजन प्रेजेंट होना चाहिए. और इसका जनरल फॉर्मूला आपको CxH2OY मिलेगा. नाउ व्हेन यू सी द वाटर फॉर्मूला, वाटर का फॉर्मूला है H2O, जहां पर आपको हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन 2, ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन 1, रेशो लिया तो 2:1. वैसे ही इफ यू सी द carbohydrate, okay, when you see the structure of carbohydrate and when you see the different type of carbohydrate, तो वहां पर आपको हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का जो भी है कॉन्सेंट्रेशन, ओके, हाइड्रोजन, ओके, H और प्लस O, इन दोनों का जो रेशो है ये 2:1 ही मिलेगा जो कि आपको वाटर में मिलता है. सो वही पॉइंट नेक्स्ट दिया है, that carbohydrate contain hydrogen and oxygen in a same ratio as in a water, that is 2:1. H2O, H हाइड्रोजन 2 यूनिट, ऑक्सीजन 1 यूनिट. वैसे ही हर एक टाइप के कार्बोहाइड्रेट के अंदर आप कोई भी कार्बोहाइड्रेट ले लो, आपको उस कार्बोहाइड्रेट के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो आपको 2:1 ही मिलेगा. लेट्स चेक, अगर आप लोग ग्लूकोज का ही चेक करो, C6H12O6, ओके, H12O6 रेशियो क्या हो गया 12 और अपॉन 6, यानी रेशियो हो गया 2:1. Okay, so each and every type of carbohydrate consists of a hydrogen and oxygen in a ratio of 2:1. Now the next point, carbohydrate can be broken down, that is oxidized to release energy. Now at the time of photosynthesis क्या होता है, photosynthesis के टाइम में आपको फॉर्मूला पता होगा, that is 6CO2 plus 12H2O in presence of a chlorophyll pigment analyte, it is converted into C6H12O6, that is glucose.
अब व्हेन वी आर ईटिंग अ प्लांट, अगर हम लोग प्लांट को ईट करें, सो प्लांट के बॉडी में से जो कार्बोहाइड्रेट वो हमारे बॉडी, अब हमारे बॉडी में हमको एनर्जी चाहिए, सो हाउ वी विल गेट एनर्जी, सो हमारे बॉडी में ये जो कार्बोहाइड्रेट है इसका सेलुलर रेस्पिरेशन होगा, मींस हमारे बॉडी में उल्टा रिएक्शन होगा, दैट इज C6H12O6 plus 6O2, okay, in presence of oxygen it is oxidized and it is converted into that is 6CO2 plus 12H2O, मतलब जो कंटेंट प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस के टाइम कॉम्बिनेशन होके ग्लूकोज का फॉर्मेशन करा है, वही ग्लूकोज हमारे सेल के अंदर जाने के बाद माइटोकॉन्ड्रिया उसका ऑक्सीडेशन करके 38 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी एनर्जी का प्रोडक्शन करेगा। सो वही पॉइंट यहाँ पे दिया है, कार्बोहाइड्रेट कैन ब्रोकन डाउन दैट इज ऑक्सीडाइज टू रिलीज एनर्जी, और ये एनर्जी हमारे बॉडी के अंदर मींस ईच एंड एवरी टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ऑक्सीडेशन में ये एनर्जी यूटिलाइज होगा उनके बॉडी के और डिफरेंट टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म के अंदर। नाउ बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ शुगर यूनिट, कार्बोहाइड्रेट आर क्लासिफाइड इनटू अ थ्री टाइप, दैट इज मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड, व्हिच वी कैन सी इन दिस पिक्चर। आपको ये पिक्चर्स में दिख रहा होगा। नाउ व्हाट्स द मीनिंग ऑफ मोनो, एज आई ऑलरेडी सेड कि हमको हर एक टाइप बायो के अंदर आपको हर एक वर्ड का मीनिंग आपको उस वर्ड में ही मिल जाएगा। Now you can see that mono means a single, di means two, poly means more than two, saccharide means क्या है, the another name of a carbohydrate that is called it as a saccharides. Monosaccharide means the sugar unit which will consist of single unit, single simple unit of sugar, that is called it as a monosaccharide. If a two monosaccharide are joined together, so ये क्या form करेगा, disaccharide. Di means two unit. Likewise example, you are drinking milk, हम लोग जो milk पीते हैं, so milk पे हमको sweet लगता है taste में, so ये sweet क्यों होता है, so there is the presence of lactose, वहाँ lactose होता है। Now what's the meaning of lactose? Glucose and galactose are joined together to forming a lactose. So glucose simple sugar है, galactose simple sugar है, दोनों join होके क्या form करेगा, disaccharide का formation करेगा। Now what's the meaning of polysaccharide? More than two unit of monosaccharide are joined together to forming a polysaccharide. So on the basis of a unit of a sugar present, the carbohydrate can be classified into three types, that is monosaccharide, disaccharide and polysaccharide. ऐसे इसके three अलग अलग types है। मोनो में आपको सिंगल यूनिट मिलेगा, डाई में 2 यूनिट मिलेगा और पॉलीसैकेराइड में दो से ज्यादा यूनिट मिलेगा। एग्जांपल स्टार्च का ले लो। Now we will see the monosaccharide in a detail. Okay, in that we will see a monosaccharide in detail. Now monosaccharide are a simplest sugar having a crystalline structure, sweet in taste and soluble in water. Common example, सभी ने ग्लूकॉन डी वगैरह पिया होगा। Now what's the meaning of ग्लूकॉन डी? आप लोग अगर देखते हो कि जो भी पर्सन वगैरह होते हैं, एथलीट्स वगैरह होते हैं, या तो फिर जो रेगुलर एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, या तो फिर जो भी स्पोर्ट्स वगैरह में होते हैं, तो वहां पे आपने देखा होगा वहां ग्लूकॉन डी वगैरह रखा हुआ होता है। एंड वो स्पोर्ट्स पर्सन जो भी होते हैं उनको डायरेक्टली वो लोग ज्यादातर लेते हैं। व्हाई दे आर टेकिंग दैट? बिकॉज, और सभी ने ग्लूकॉन डी वगैरह पिया होगा, so you know that the structure of that simple sugar, that is glucose, it is a crystalline structure, ये क्रिस्टल के फॉर्म में मिलेगा। स्वीट इन टेस्ट, ग्लूकोज आपको स्वीट मिलेगा टेस्ट में, एंड सॉल्युबल इन वाटर, वाटर के अंदर मिक्स करके हम लोग उसको ड्रिंक करते हैं, सो ये नॉर्मली वाटर के अंदर सॉल्युबल। नाउ दे कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज इनटू अ स्मॉलर मॉलिक्यूल। देखो जैसे अगर हमने मिल्क पिया है, सो मिल्क का हमारे बॉडी में डाइजेशन हो। अब देखो जो एथलीट्स होते हैं या स्पोर्ट्समैन होते हैं, सो उनको उस टाइम में आपने देखा होगा कि दे आर नॉट ड्रिंकिंग अ मिल्क, मिल्क से भी तो हमको एनर्जी मिलता है, बट हम लोग मिल्क उस टाइम नहीं पीते, उस टाइम हम लोग ग्लूकॉन डी प्रेफर करेंगे। क्यों? ग्लूकॉन डी एक सिंपल शुगर है जो ब्लड के अंदर आराम से डाइजेस्ट हो जाए, मीन ब्लड के अंदर वो मिक्स हो जाएगा और बॉडी में यूटिलाइज होने के लिए चलेगा। मिल्क पी लिया तो क्या होगा, मिल्क का हाइड्रोलाइसिस होगा, मींस मिल्क के अंदर लैक्टोज प्रेजेंट है, ये डाइसैकेराइड है, देन इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, सॉरी इसका क्या होगा, दैट विल बी ब्रोकन डाउन और फिर ग्लूकोज और गैलेक्टोज फ्री होगा। मींस सिंपल शुगर जो होते हैं, दैट इज ग्लूकोज गैलेक्टोज, ये फिर से सिंपल यूनिट में हम लोग कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो वही पॉइंट यहाँ दिया है, simple sugar cannot be further hydrolyzed into a smaller molecule. Now the next point,
सिंपल शुगर आर बिल्डिंग ब्लॉक्स और मोनोमर ऑफ अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। यानी कि अगर आपको डाइसैकेराइड बनाना है कैसे बनेगा? सो दो मोनोमर यूनिट लाइक एग्जांपल ऑफ लैक्टोज कैसे फॉर्म होगा? ग्लूकोज और गैलेक्टोज को ज्वाइन किया तब जाके फॉर्म होगा लैक्टोज। स्टार्च कैसे फॉर्म होगा? सो मेनी मोनोसैकेराइड आर जॉइन टुगेदर, फिर उससे फॉर्म होगा दैट इज अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। सो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट फॉर्म करने के लिए हमको मोनोमर के ज्वाइन करने पड़ेंगे। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, that monosaccharide have a general molecular formula that is CH2ON. Okay, here N is number of, मतलब हमको नंबर लेना, and that number can be started from 3, 4, 5, 6, 7 and according to that it will be of type triose। मीन्स ये जो भी फॉर्मूला है इसके अंदर हमने 3 से स्टार्ट किया तो आपको अलग अलग टाइप के मोनोसैकेराइड मिल जाएंगे विच यू कैन सी इन दिस पिक्चर। ओके, आपको राइट साइड में देखो मिल रहा है। अगर मैंने इसको 3 ले लिया, इफ अगर मैंने यहाँ 3 ले लिया तो कार्बन 3 हो जाएगा C3, देन H2 2 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज 6, C दैट इज यहाँ पर आपको मिल जाएगा ट्रायोस शुगर, 3 कार्बन ट्रायोस शुगर, 4 कार्बन टेट्रा, केमिस्ट्री का आपको पता होगा, 5 कार्बन पेंटा, 6 कार्बन हेक्सा और 7 कार्बन हेप्टेन। ओके, सो दैट इज इसके हिसाब से देखो यहाँ पर अलग अलग टाइप के शुगर है। 3 कार्बन ट्रायो शुगर, देन 4 कार्बन टेट्रो शुगर, एग्जांपल इज एरिथ्रोज। पेंटो शुगर, कॉमन एग्जांपल इज आरएनए एंड डीएनए दैट इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। सो डीऑक्सीराइबो शुगर और राइबो शुगर आरएनए के अंदर होता है। हेक्सोज, व्हाटएवर फूड वी आर ईटिंग, यहाँ से हमको ज्यादातर क्या मिलता है? ग्लूकोज, जो कि ब्लड के अंदर शुगर है, सो 6 कार्बन है। देन फ्रक्टोज, जो हम लोग फ्रूट ईट करते हैं वहां से हमको मिलता है। गैलेक्टोज मिलेगा लैक्टोज मिल्क से। देन हेप्टोज दैट इज 7 कार्बन, that is pseudohaptulose. Okay, so these are the different type of monosaccharide on the basis of carbon atom present. Now the next part is monosaccharide containing aldehyde that is CHO group are classified as aldoses, example glucose and xylose, and those with a keton group that is COO group are classified as ketoses, that is ribulose and fructose. Now what's the meaning of that? So monosaccharide के फिर से दो टाइप है। एक तो हमने टाइप देखा on the basis of their carbon atom, monosaccharide are divided into that is triose, tetrose, pentose, then hexose and pseudoheptulose. Then here the that is monosaccharide are classified on the basis of their aldehyde group and keton group। वहां पर कौन से टाइप का ग्रुप प्रेजेंट है? When you see the first one picture, यहाँ पर देखो अल्टो शुगर का अगर मैंने एग्जांपल लिया तो यहाँ पर आपको देखो कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड O का मिलेगा और यहाँ पर इस साइड में आपको क्या मिलेगा? 1 हाइड्रोजन आइटम। So if monosaccharide consists of CHO, that is aldehyde group, so this type of sugar is called it as a aldose sugar. Okay, तो ये sugar को बोलना है aldose sugar and the common example is glucose and xylose. When the sugar unit are consist of a keton group, यहाँ पर देखो यहाँ पर भी आपको C and double bond करके ऑक्सीजन मिल रहा है, बट यहाँ पर आपको ये बॉन्ड साइड में नहीं मिलेगा, तो इनसाइड कार्बन कार्बन दोनों साइड में कार्बन कार्बन और बीच में यहाँ पर आपको मिल जाएगा। मीन्स यहाँ पर हाइड्रोजन आइटम नहीं आ रहा है यहाँ पर। सो दिस टाइप इज कॉल्ड इट एज अ केटॉन ग्रुप। So when the sugar consists of keton group, so this type of monosaccharide is called it as a ketose sugar, and the common example are ribulose and fructose sugar. Now all monosaccharide are reducing sugar. Okay, all monosaccharide are reducing sugar due to the presence of free aldehyde and keton group. So यहाँ पर free aldehyde या तो keton group होता है, so because of that they are reducing sugar. Now what's the meaning of reducing sugar? So यहाँ पर एक point दिया है। Okay, ये जो point है ये हमारे practical से related है। 11th में आपको एक बेनेडिक्ट टेस्ट करके देखना है, that is आपको कुछ सैंपल वगैरह मिलता है यूरिन का वगैरह, या तो फ्रूट के अंदर हमको चेक करना है कि वहां शुगर प्रेजेंट है या नहीं। सो इसके लिए बेनेडिक्ट करके रिएजेंट होता है। सो दिस शुगर दैट इज मोनोसैकेराइड reduces the Benedict reagent that is Cu+2 to Cu+.
since they are capable of transferring hydrogen, that is electron, to other compound as a process is called it as a reduction. Now you can see that हम लोग यहाँ पर ये practicals के अंदर जो chemical use करते हैं that is Benedict reagent. So in that Benedict reagent there is a presence of CuSO4 that is copper sulfate, and the copper sulfate consists of Cu plus plus, okay, Cu plus 2 unit and SO4 minus. यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो 2 Cu plus है ये in presence of reducing sugar like a monosaccharide, ओके, लाइक मोनोसैकेराइड, जहां पर इलेक्ट्रॉन होता है तो ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा Cu के प्लस, सो अल्टीमेटली दैट Cu कन्वर्ट हो जाएगा Cu प्लस 1 में, ओके, सो दैट इज कॉल्ड इट एज, एंड फिर वहां पर आपको जो बीकर हो, सॉरी नॉट ए बीकर, आप लोग जो टेस्ट करते हो जो स्मॉल आपको टेस्ट ट्यूब मिलता है, वहां पर आपको ब्रिक रेड या ग्रीन या तो फिर आपको येलो कलर का प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन मिल जाता है इफ दिस इज प्रेजेंट, अगर वहां रिड्यूसिंग शुगर प्रेजेंट रहा तो, ओके, सो दिस इज वन टाइप ऑफ टेस्ट दैट इज बेनेडिक्ट रिएजेंट, ओके, और ये रिएजेंट में Cu+2 एक कंपोनेंट है और उसका कन्वर्जन रिड्यूसिंग शुगर किसमें कर देगा, Cu+ में, सो इफ अ रिड्यूसिंग शुगर इज प्रेजेंट तो फिर वहां पर ये आपको टेस्ट पॉजिटिव के अंदर मिलेगा, जो कि हमको प्रैक्टिकल में भी करना। नाउ द मोनोसैकेराइड के बहुत सारे एग्जांपल है, बट वी विल टेक अ सम ऑफ देम। यहाँ पर आपके पास यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए। द फर्स्ट वन एग्जांपल ऑफ मोनोसैकेराइड इज अ ग्लूकोज। कॉमन एग्जांपल, ग्लूकोज के बारे में सभी को पता है, वट एवर फूड वी आर ईटिंग, हम लोग जितने भी फूड ईट करते हैं इसके अंदर आपको जो भी हम लोग फूड ईट करते हैं इसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट रहेगा और कार्बोहाइड्रेट में भी ग्लूकोज सबसे ज्यादा मिलेगा। सो ग्लूकोज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्यूल इन अ लिविंग सेल। जैसे गाड़ी के अंदर पेट्रोल यूज होता है, डीजल यूज होता है जो कि उसको फ्यूल प्रोवाइड करता है, सो इन अवर बॉडी सेल रिक्वायर्स एनर्जी, और ये एनर्जी कहाँ से आएगा, माइटोकॉन्ड्रिया इज अ पावर हाउस ऑफ द सेल, बट उसको जो पेट्रोल लगेगा, डीजल लगेगा, वो फ्यूल क्या है, सो दिस फ्यूल इज नथिंग बट अ ग्लूकोज। प्रोटीन भी यूज होता है, अमीनो एसिड से भी होता है, बट मोस्ट ऑफ ग्लूकोज से होता है, ओके, सो ग्लूकोज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्यूल। फैट का भी जनरेशन होता है एनर्जी के लिए, बट सबसे ज्यादा ग्लूकोज का यूज होगा। नाउ अलग अलग टाइप के हैं शुगर, बट ग्लूकोज सबसे ज्यादा यूज होता है। नाउ ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन इन ह्यूमन ब्लड इज अबाउट 90 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ अ ब्लड, ओके, ब्लड शुगर टेस्ट वगैरह हम लोग जो करते हैं, सो वट एवर फूड वी आर ईटिंग, सो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसके अंदर मोस्ट ऑफ शुगर ही प्रेजेंट होता है, और वो शुगर नॉर्मली कौन सा शुगर रहेगा, तो ये ग्लूकोज रहेगा। सो ईच एंड एवरी पर्सन हैव 90 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड, 100 ml ऑफ ब्लड के अंदर 90 मिलीग्राम ग्लूकोज तो रहेगा हर एक पर्सन। देन दीज आर स्मॉल साइज, ग्लूकोज का साइज स्मॉलर है। सॉल्युबिलिटी इन अ वाटर, ओके, ग्लूकॉन डी वगैरह सबने पिया है, सो वो वाटर में इजीली सॉल्युबल है। सो बिकॉज ऑफ दिस नेचर दे आर स्मॉलर इन साइज and plus they are soluble in water. Glucose molecule allow them to pass through a cell membrane into a cell, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया तक जाएगा तभी तो जाके वहां पर रेस्पिरेशन होगा, तो वहां तक जाने के लिए ये वाटर में पहले सॉल्युबल होना चाहिए, ओके, तो पहले ये वाटर में सॉल्युबल होगा तब जाके तो वहां पर क्या होगा, मिसिबल होने के बाद सेल के मेम्ब्रेन में से ये माइटोकॉन्ड्रिया तक ट्रांसफर होगा। सो ये क्यों ट्रांसफर होता है, बिकॉज दे आर स्मॉल साइज एंड सॉल्युबल इन वाटर। Energy is released when the molecule are metabolized by cellular respiration. Now what's the meaning of that? Okay, हमने जो photosynthesis का जो आपने फॉर्मूला लिया था, वो फॉर्मूला क्या होता है, 6CO2 plus 12H2O in presence of light and chlorophyll pigment, वो किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज में। सो वट एवर फूड वी आर ईटिंग, अगर उसके अंदर शुगर है तो ये शुगर अगर ग्लूकोज है तो ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, वहां पर सेलुलर रेस्पिरेशन होगा, मींस ऑक्सीजन जो ब्लड में से आ रहा है वो फिर से माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा। सो इन प्रेजेंस ऑफ दैट ऑक्सीजन दिस ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड एंड इट इज अगेन कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। एट द सेम टाइम कार्बन और वाटर ये तो हमारे बॉडी में से निकल जाएंगे विद द हेल्प ऑफ एक्सहेलेशन, यानी लंग से निकल जाएगा या तो यूरिन से वाटर जा जाएगा, बट व्हाटएवर एटीपी एनर्जी इज फॉर्म इट इज यूटिलाइज्ड इन अवर बॉडी। मींस अगर मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, कैसे बोल रहा हूँ, सो ये बोलने के लिए मुझे एनर्जी चाहिए, एंड ये एनर्जी हमारे बॉडी में कैसे मिलेगा, दैट इज एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट।
ये कैसे बनेगा? सो ये एनर्जी बनाने के लिए जो हमारे बॉडी में प्रोसेस के लिए जो रॉ मटेरियल लगेगा, वो भी रॉ मटेरियल कौन सा है? ग्लूकोज है. So glucose is a energy release when the molecule are metabolized. Okay, glucose के molecule का जब ऑक्सीडेशन होगा, सेलुलर रेस्पिरेशन होगा हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में, तब ये एनर्जी का प्रोडक्शन करेगा. Now the second type of monosaccharide is galactose. Now what's the meaning of galactose? It looks very similar to glucose molecule. When you see that a picture, okay, galactose भी अगर हमने यहाँ पे ले लिया तो आपको स्ट्रक्चर वाइज अगर हम लोग लेंगे तो ये आपको ग्लूकोज, यू कैन सी इन दिस पिक्चर, आपको ये स्ट्रक्चर में दिख रहा होगा, देखो ये है ग्लूकोज एंड दिस वन इज अ गैलेक्टोज. बोथ ऑफ देम आर सिमिलर. ओके, थोड़ा सा डिफरेंस है. सो दे लुक्स वेरी सिमिलर टू द ग्लूकोज मॉलिक्यूल galactose. Then galactose can exist in a two form, that is alpha and beta form. You can see that picture. आपको ये वाला जो पिक्चर मिल रहा है, स्ट्रक्चर मिल रहा है, रिंग स्ट्रक्चर, दिस इज अल्फा गैलेक्टोज का है और ये वाला स्ट्रक्चर बीटा गैलेक्टोज का. नाउ व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द अल्फा एंड बीटा? यू कैन सी द OH ग्रुप. ओके, यहाँ पे देखो आपको अल्फा वाला जो है, यहाँ पर 6 वाला कार्बन एटम कौन से साइड में है? अपर साइड में है. तो यहाँ पर आपको जो OH एटम है, यहाँ पर आपको OH एटम कहाँ पर मिलेगा? सो यू कैन सी दैट दिस वन इज प्रेजेंट ऑन अपोजिट साइड. यहाँ पर ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये आपको अपोजिट साइड में मिल जाएगा OH ग्रुप. When you see the beta galactosidase बीटा फॉर्म, तो बीटा फॉर्म में जो आपको OH ग्रुप है, ओके, यू कैन सी दैट OH ग्रुप आपको यहाँ पर कौन से फॉर्म में मिलेगा? तो ये 6 वाला कार्बन जिस साइड में है उसी साइड में आपको ये साइड मिलेगा. सो दैट इज कॉल्ड इट एज अल्फा एंड बीटा फॉर्म ऑफ गैलेक्टोज. ओके, सो ये दो फॉर्म में आपको मिल जाएगा गैलेक्टोज, दैट इज अल्फा एंड बीटा फॉर्म, व्हिच यू कैन सी इन दिस पिक्चर. द फर्स्ट वन इज अल्फा फॉर्म है और ये वाला बीटा गैलेक्टोज का फॉर्म. नाउ galactose react with the glucose and form a disaccharide like a lactose. You can see the picture. This one is a picture of lactose. Lactose is one type of lactose, यानी क्या है? disaccharide. Disaccharide कैसे बनेगा? So monosaccharide glucose and monosaccharide galactose when they are joined together, तो इससे form होगा lactose. Now where it is present? So you all are drinking a milk. So milk sweet क्यों होता है? So milk के अंदर होता है there is a presence of lactose disaccharide. Okay, so ये जो lactose है disaccharide का formation के लिए ग्लूकोज और गैलेक्टोज जब एक जगह आएंगे तो रिएक्ट होने के बाद लैक्टोज का फॉर्मेशन होगा. Now, however, glucose and galactose cannot be easily converted into one another. Okay, glucose and galactose cannot be easily converted into one another. एक से दूसरे फॉर्म में इसको हम लोग कन्वर्ट नहीं कर सकते इजीली. Galactose cannot play the same role in a respiration as a glucose. जैसे ग्लूकोज हमने देखा था, ग्लूकोज का हमने रेस्पिरेशन में सबसे ज्यादा यूज देखा था, वैसे आपको गैलेक्टोज का यूज रेस्पिरेशन के लिए नहीं मिलेगा. ओके, दोनों का स्ट्रक्चर और फॉर्मूला थोड़ा बहुत सिमिलर भी है, बट लेकिन फिर भी ग्लूकोज का सबसे ज्यादा रेस्पिरेशन में यूज होगा, वैसे रेस्पिरेशन के अंदर गैलेक्टोज डायरेक्टली यूटिलाइज रोल प्ले नहीं करेगा. Now the third type of a common monosaccharide is fructose sugar. Fructose आपने सुना ही होगा. So the fructose sugar, it is present in the fruit, whatever fruit we are eating, and they are sweet in nature. So they have also a simple sugar like a fructose is present. So fructose is a fruit sugar and chemically it is a ketohexose. मतलब यहाँ पर केटोन वाला ग्रुप प्रेजेंट रहेगा. So hexose यानी ये 6 कार्बन है. So ketohexose, you can see that, okay, 6 carbon, that is first number, then second number, okay, then third number, fourth number, fifth number. So ऐसे करके आपको ये 6 जो भी है hexose मिल जाएगा. So fructose is a fruit sugar and chemically it is a ketohexose, but it has a 5 atom ring rather than 6 atom ring. अगर हम लोग यहाँ पे ग्लूकोज से कंपेयर करेंगे, वहां पर हमने देखा था जो भी रिंग था वो 6 का फॉर्मेशन कर रहा है, बट हियर यू विल गेट ओनली अ 5 एटम रिंग. यहाँ पर आपको 5 एटम का रिंग मिल जाएगा. सो वही पॉइंट दिया है, इट हैज अ 5 एटम रिंग rather than 6 atom ring. Fructose react with glucose to form a sucrose. Sucrose क्या है? Okay, sucrose a disaccharide.
सो सुक्रोज जो भी डाइसैकेराइड है कैसे फॉर्म होगा? सो जैसे हमने लैक्टोज का फॉर्मेशन लिया था ग्लूकोज और गैलेक्टोज, वैसे फ्रक्टोज अगर ग्लूकोज के साथ रिएक्ट हो रहा है तो ये डाइसैकेराइड यानी सुक्रोज का फॉर्मेशन करेगा। दीज आर द टू फॉर्मूला ऑफ अल्फा डी फॉर्म ऑफ फ्रक्टोज और ये बीटा डी फॉर्म। यहाँ पर भी देखो ये OH ग्रुप आपको देखो कहाँ पर मिल रहा है, कार्बन एटम के अपोजिट साइड में, और यहाँ पर ये उसी साइड में मिल रहा है। सो ये बीटा फॉर्म। So this is all about that biomolecules, 6.2 biomolecules in the cell. Okay, so if any students have a doubts, okay, so हमारे कॉलेज का जो ग्रुप है वहां पर मेरा नंबर आपको दिया ही है, so you can contact me on a WhatsApp. So WhatsApp के ऊपर कांटेक्ट करो और सो मैं आपको कॉल वगैरह करूंगा, कॉल बैक करूंगा। अगर वैसे भी नहीं समझा कॉल के ऊपर तो मैं आपको मीटिंग जनरेट करके वैसे समझाऊंगा। So if you have any doubts, you can contact me on a WhatsApp. So whenever I am free, I will call you. Directly call मत करो because ऐसे हो सकता है कि मेरा लेक्चर स्टार्ट हो और फिर उसमें कॉल आ जाए तो मैं नहीं उठा पाऊँ। So आप लोग WhatsApp पे मुझे मैसेज कर देना and my number is 9273887800 and contact me on a WhatsApp if you have any doubts in this chapter. Thanks all of you.